बजाज यानी आरकेबी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और आप हम दोनों को देख रहे हैं कहाँ पर, नेशन नाउ पर। और ये जो आप लोगों ने जो आई वुड लाइक टू आस्क द प्रोडक्शन टीम, दैट ब्लू स्ट्रिप दैट यू हैव गॉट ओवर देयर इज समथिंग न्यू। आई मीन व्हाट इज इट? It's a new design. It's something out of Stanley Kubrick's. They were working very hard on that too. Stanley Kubrick's 2001: A Space Odyssey. What is that supposed to be? Star Wars? ये क्या है ऊपर? That must be the space for the headers, I think. Yes. It's a new design that they have. But it never used to be there earlier. When we used to be on the full frame. ये background graphics है साहब। चलिए, thank you so much. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। So प्रदीप जी, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। Actually, I don't like that blue strip. Can you get rid of it, if possible? इसको अगर आप निकाल दें तो ये नीले रंग की जो स्ट्रिप है पीछे, बैकग्राउंड ग्राफिक्स जो है, उसको अगर निकाल दें तो अच्छा रहेगा। आगे आप लोगों की मर्जी, वैसे आप लोग मालिक हैं। Without even telling me, you've put this on, which is amazing anyway. The arbitrary decision of the engineering head. Arbitrary decision of the commander. Whom I'm not supposed to name. प्रदीप जी ये बताएं, Supreme Court's order. बिल्कुल सर। So in taking out that blue strip from top, they can have only one frame. Right? Isn't that funny? I can't see Pradeep ji. Where is he? Right, I can see him now. So Pradeep ji, Supreme Court order, two orders which have gone apparently against the BJP. One, of course, is the electoral bonds issue, and now this Chandigarh mayor issue. And before that, Bilkis Bano issue. And the Bilkis Bano. I mean, that was very. I mean, I would like to understand what will the court do that some certain things that have been produced before the court are totally unconstitutional. How can court rule in the favor of the government? You can't. And why would the government do that in the first place? I am reasonably certain the big two of the BJP and government, namely Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah, are not aware of this. I don't think so. मुझे नहीं लगता। I don't think they will ask the BJP top leadership to सवाल ही नहीं। एक छोटा सा mayoral elections को आउटलेट करे। सर आप ये देखिए, अरे जहां पर 20 वोटों में कोई जीत रहा है तो मतलब what is it? What kind of a corporation is it? I mean, it's so stupid. You got a camera that is highlighting and he knows there's a camera fit there, and the election officer is doing all kinds of malpractices that he's not supposed to do, and then you expect that they will not go to the court. Sir, and if something is brought before the court, and then especially the Supreme Court, I think we'll go what will he do? Mr. प्रदीप गावड़े के पास हम लोग जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिसने भी ये निर्णय लिया है, उनको शायद थोड़ी लीव पर भेज देना चाहिए, उनको बोल देना चाहिए भैया निकाल देना चाहिए सर पार्टी से। It's getting the party a bad name because Prime Minister Modi had to react on the Supreme Court, not on the electoral bond issues. I mean, ये सब connected है, एक के बाद एक। सर ऐसा है, आज की तारीख में जो नरेंद्र मोदी जी की छवि है, आज की तारीख में उसका कोई मुकाबला नहीं है, सीधी बात है। He is the most popular leader India has ever had. I would say he is even more popular than पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई शक नहीं। मतलब और आप जाकर के एक छोटी सी इलेक्शन में धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग? आई मीन दिस इज लाइक, आई थिंक नड्डा जी शुड टेक अ वेरी सीरियस व्यू कि किसने ये किया है, और उसको बोल दीजिएगा भैया थैंक यू वेरी मच, आप कांग्रेस में चले जाइए। ये सारे काम तो कांग्रेस के वक्त हुआ करते थे। वी डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम द बीजेपी। लेट्स गो अक्रॉस टू मिस्टर प्रदीप गावड़े, आवर वेरी ओल्ड फ्रेंड मिस्टर गावड़े इज विद अस। प्रदीप गावड़े साहब नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम सर, जय सिया राम। जय सिया राम। प्रदीप गावड़े साहब, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है और नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, उसको कोई छू नहीं सकता, सीधी बात है। मतलब ठीक है, पंडित नेहरू, हम तो बहुत छोटे थे, मतलब आई डोंट रिमेंबर पंडित नेहरू जी एट ऑल बिकॉज ही हैड ऑलरेडी डाइड बाय द टाइम आई वाज बॉर्न। पंडित नेहरू जी जा चुके थे, और उसके बाद इंदिरा जी का वक्त हम लोगों ने देखा है, और राजीव गांधी का भी वक्त हम लोगों ने देखा है, लेकिन जो प्रभाव नरेंद्र मोदी जी का है पूरी देश पर और पूरी दुनिया पर, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो आपको लगता नहीं है कि सर ये जिसने भी ये चंडीगढ़ का कांड किया है उसको पार्टी से छुट्टी दे देनी चाहिए, उसको बोलना चाहिए भैया जा करके तुम वापस रीट्रेनिंग में जाओ,
आपकी वजह से व्हाई शुड मिस्टर मोदी और द बीजेपी गेट अ बैड नेम? प्रदीप गावड़े साहब, आप बताएं। नहीं साहब, अभी उसमें जैसे आपने शुरुआत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और हम उन लोगों में से नहीं है जो अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अपने फेवर में आता है तो हम ये कहेंगे कि ये न्याय की विजय हुई है, और अगर हमारे खिलाफ जाता है तो हम ये कहेंगे कि जुडिशरी भी बेची गई है या फिर जुडिशरी में भी सरकार का हस्तक्षेप चल रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसका इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। जो भी कुछ हमारे कुछ कार्यकर्ताओं से अगर कुछ गलती हुई होगी तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। लेकिन आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कि जो अपना इलेक्शन का स्लिप होता है, वोटिंग स्लिप होता है ऐसे इलेक्शन में, अगर उसके ऊपर कोई ओवर राइटिंग होगी या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड या फिर अनवारंटेड कुछ मार्क्स होंगे तो वो डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इट हैज बीन अ लॉन्ग प्रोसीजर, अ लॉन्ग हिस्ट्री। मैं आपको 2 उदाहरण बताना चाहता हूँ इस बारे में। बेंगलोर का म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ था, उसमें हमारे बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स ज्यादा थे, फिर भी वहां पे कांग्रेस का मेयर बना था। वही वहां पे भी यही रीजन दिया गया था कि कुछ स्लिप्स जो है वो डिस्क्वालीफाई हुई है या फिर रद्द की गई है। और एक बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल एक इलेक्शन हुआ था गुजरात में, राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था, आप सब जानते हैं, जिसमें अहमद पटेल चुन के आए थे। 6 साल पहले इलेक्शन हुआ था। उस वक्त भी यही केस हुआ था कि बीजेपी के कुछ वोट डिस्क्वालीफाई किए थे, बीजेपी के पास ज्यादा वोट्स थे, लेकिन कुछ वोट्स जस्ट बिकॉज वो किसी को दिखाया है वोट या फिर वहां पे कुछ ओवर राइटिंग की है उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई किए थे। और उस वक्त गुजरात में भी हमारा गवर्नमेंट था, सेंटर में भी हमारा गवर्नमेंट था, हमारे पास नंबर्स भी ज्यादा थे, लेकिन फिर भी हम एक राज्यसभा सीट हारे थे। मेरा टेक्निकल पॉइंट उसमें सिर्फ यही है कि ये हिस्ट्री रही है। अगर इलेक्शन की स्लिप के ऊपर अगर आप कुछ किसी को दिखाते हैं या फिर उसके ऊपर कुछ ओवर राइटिंग करते हो तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ये एक हिस्ट्री रही है। सर, ये आर्ग्यूमेंट पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। Having said that, sir, we completely respect the decision of Supreme Court, and we will accept the decision with utmost respect. और हमारे पास से जो भी कुछ करेक्शन करना होगा, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं से गलती हुई होगी तो हम उसका भी रेट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। Thank you very much. I hope so. I really and truly hope so, and I expect so. Let's be very clear. I expect it from the BJP. बीजेपी से यही अपेक्षा है और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से बिहेव करेगी। Let's be very clear. Which is why I said at the beginning, this must be the bright idea of some fool on at the local level, and that's it. Sir, in any event, it has happened. But congratulations, the Maratha reservation bill has been passed. Maratha आरक्षण का जो बिल आज पेश हुआ असेंबली में, स्पेशल सेशन ऑफ द असेंबली, एंड इट वाज एक्चुअली पास्ड. 10% reservation for Marathas in all educational institutions and so on and so forth. You have to say something on that, sir. प्रदीप गावड़े साहब, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप, प्लीज? यस सर, यस सर, ये सर हमारे लिए आज महाराष्ट्र के लिए भी और मराठा समुदाय के लिए भी आज का दिन एक हिस्टोरिक दिवस है। आज महाराष्ट्र विधानसभा की और विधान परिषद में दोनों में मराठा आरक्षण का जो बिल है वो पास हुआ है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके ये रिजर्वेशन दिया गया है। तो हमारा ये पूरा मानना है कि ये रिजर्वेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी अगर गया तो वो अपील किया जाएगा। बिकॉज जो पहला डिसीजन आया था, मतलब जो पहले हमने ही मराठा रिजर्वेशन दिया था देवेंद्र जी ने, फिर जब हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे थी तो हमने महाराष्ट्र में हाईकोर्ट में उसको बहुत अच्छे तरीके से रखा था पूरे फैक्ट को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त की गवर्नमेंट ने, मतलब उस वक्त कोर्ट ने भी कुछ रिमार्क्स पास किए थे कि गवर्नमेंट इस तरीके से इसको ठीक से हैंडल नहीं कर रहा है, या फिर उस वक्त के जो लॉयर्स थे वो भी ये बता रहे थे कि हमको पूरी मदद गवर्नमेंट से नहीं मिल रही है। लेकिन अभी वो हिस्ट्री बन गया है, लेकिन वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चला नहीं, वो डिसीजन अपील नहीं हुआ और उसका खामियाजा यहाँ पे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को उठाना पड़ा। उस आरक्षण में जिन लोगों को नौकरी मिली थी उनको भी कंटिन्यू करने के लिए पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, और जब हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे आई तो हमने एडिशनल पोस्ट क्रिएट किए और उन लोगों को भी अपॉइंटमेंट किया। लेकिन अब जब फिर से हमने ये रिहर्सल की, जो पिछले डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स किए थे, जो कुछ खामियां बताई थी, उसका पूरा स्टडी करके हमने ये अभी का जो सर्वे है शुक्रे साहब की कमेटी ने वो किया है और उसको पूरा स्टडी करके आज का रिजर्वेशन दिया गया है। और हम ये मानते हैं
ये जो लास्ट रिजर्वेशन दिया गया है वो हाईकोर्ट में भी रहेगा और सुप्रीम कोर्ट में भी रहेगा। हम अच्छे तरीके से इसको वहां पे डिफेंड करेंगे जी। और ये मराठा समुदाय के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का। जी। और मैं मराठा समुदाय के लिए जबरदस्त सर, जबरदस्त, मानना पड़ेगा, जबरदस्त। सरकार का भी अभिनंदन करता हूँ। और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने जो मराठा आरक्षण का कानून बनाया था वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया था, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुआ क्योंकि जो डेटा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था वो महाराष्ट्र सरकार नहीं दे पाई। द सुप्रीम कोर्ट had specifically asked for some specific data which amazingly enough with the Maharashtra, in spite of having the data they were not able to supply it. Number 2, बड़ी अजीब व गरीब बात है प्रदीप गावड़े साहब, इसके ऊपर ज़रा गौर फरमाएं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, मैं तो उस पर टिप्पणी बहुत बार कर चुका हूँ, प्रदीप जी भी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट वांटेड ट्रांसलेशन, दे वांटेड ट्रांसलेशन फ्रॉम द ओरिजिनल इन मराठी। You know, the government of Maharashtra was not able to provide even the translation. मतलब ये क्या था, आप जरा बताएं सर, इसमें मतलब इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? They did not take it seriously. क्या हुआ होगा? अभी तो चलिए ठीक है, this bill mirrors, actually it mirrors the bill passed by Mr. Devendra Fadnavis with a few additions. लेकिन वहां पर जो ट्रांसलेशन अंग्रेजी में अनुवाद भी नहीं दे पाए मराठी का, उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है सर गावड़े साहब? देखिए साहब, सर जो गायकवाड़ कमीशन का रिपोर्ट था वो रिपोर्ट भी बहुत साउंड था और उस रिपोर्ट में भी मतलब जो एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि सोशल बैकवर्डनेस, उसको उस जो गायकवाड़ कमीशन का रिपोर्ट था उसमें भी वो मराठा समुदाय को सोशली बैकवर्ड बताया गया था। वो बिग डेटा प्रूव किया गया था इवन इन द रिकमेंडेशन ऑफ गायकवाड़ कमीशन। वो जो एनेक्सर्स थे जो मराठी में थे जो ये बता रहे थे कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय कैसे सोशली बैकवर्ड है, उसके जो कुछ प्रमाण दिए गए थे, कुछ इंपेरिकल डेटा दिया गया था। मतलब जैसे कि महाराष्ट्र के सिटीज में जो हाउस होल्ड काम करने वाली महिलाएं हैं उसमें मराठा समुदाय की कितनी महिलाएं हैं, महाराष्ट्र में जो स्लम्स है उसमें मराठा समुदाय के कितने लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में शिक्षा में मराठा समुदाय का कैसा बैकड्रॉप है। तो ये सब जो सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्डनेस दिखाने वाले जो एनेक्सर्स थे गायकवाड़ कमीशन में, उसको उस वक्त आपने करेक्टली कहा कि सरकार ने उसको ट्रांसलेट करके भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया। इसकी वजह से वो डिसीजन ये आया कि मराठा समुदाय सोशली बैकवर्ड नहीं थी। लेकिन वास्तविकता ये थी कि गायकवाड़ कमीशन ने ये कहा था वो सोशली बैकवर्ड है जस्ट बिकॉज उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट, शरद पवार साहब की गवर्नमेंट और सोनिया गांधी जी की गवर्नमेंट जो थी वो महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जो देवेंद्र फडणवीस ने आरक्षण दिया है वो रहे और उससे मराठा समुदाय का कुछ भला हो ताकि लोग उसके ऊपर राजनीति कर सके। इसकी वजह से फॉर द पॉलिटिकल रीजंस वो जो एनेक्सर्स थे वो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किए और उसका खामियाजा ये हुआ। We've just lost him. Yes, we just lost yes, him. I think he'll be back. I think he'll be back. He'll be back. Right. And he's but Pradeep ji, this bill actually mirrors the Fadnavis bill, except for a few additions because of the new committee which is there and all the new data. The point is, after this bill and after special session being called, because उनका कहना था कि बहुत सारे विरोधी पक्ष की, there was a budget session that is coming up shortly. The government had to hurry and call this particular session, and especially for this Maratha. But are the Maratha community happy? Because is Jarange Patil happy? Is Chhagan Bhujbal under wings? Because जिस प्रकार से वातावरण हुआ था छगन भुजबल जी ने जिस प्रकार से ओपनली असेंबली में आवाज उठाया कि वी फील अनसेफ, ये जिस प्रकार से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम द मराठा कम्युनिटीज, ही सेज दिस इज टोटली एग्रेसिव अप्रोच जो मराठा कम्युनिटी लिया है। भुजबल साहब ने इस चीज को बार बार हाईलाइट करा था। स्पीकर सेड इफ यू वांट वी विल गिव यू security protection, we'll give you police protection, but the point is it is not छगन भुजबल जी। I don't think छगन भुजबल जी को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है because he is capable in himself. It is by and large गावड़े साहब ये आज स्पेशल सेशन बुलाने के बावजूद, हर चीज करने के बावजूद, we found that ना जरांगे पाटिल जी खुश थोड़ा बहुत दिख रहा था, ना छगन भुजबल जी खुश दिख रहा था। जरांगे पाटिल जी बोल रहा था कि ना ये संपूर्ण बिल नहीं है, इसके लिए स्पेशल जो आलोचना आज कर रहे थे मनोज जरांगे पाटिल, उसे ऐसा लग रहा था वो संतुष्ट नहीं है।
या मराठा संतुष्ट नहीं है। और यहां पर छगन भुजबल जी ओपनली असेंबली में ये चिल्ला के बोल रहा था कि लुक एट द एरोगेंस ऑफ मराठा कम्युनिटी, जिस प्रकार से वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रहा है, कि एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहा है। द ओबीसी, दे एक्सपेक्ट द ओबीसी टू लिव अंडर फियर कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूस थ्रेटनिंग जिस प्रकार से चल रहा है। एंड व्हाई इज द गवर्नमेंट कीपिंग मम? द गवर्नमेंट शुड बी एब्सोल्युटली शोइंग द रूल ऑफ लॉ। तो ये क्या, ये होने के बावजूद प्रदीप गावड़े साहब, आपको लग रहा है कि दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं है, ना मराठा संतुष्ट है ना ओबीसी कम्युनिटी संतुष्ट है? आपका पर्सनल ओपिनियन, आप कैसे इसको देखते हो? एक मेरा पर्सनल ओपिनियन अलग है और महाराष्ट्र की जो वस्तुस्थिति है जमीन के ऊपर वो भी अलग है। मराठा समुदाय खुश है कि उनको 10% रिजर्वेशन मिला है और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर मिला है जो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील होगा। इसकी वजह से मराठा समुदाय भी खुश है। दूसरी ओर ओबीसी समुदाय भी इस वजह से खुश है कि मराठा समुदाय को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो ओबीसी समुदाय के रिजर्वेशन को बिना ठेस लगा के दिया गया है। मतलब मराठा कम्युनिटी इस वजह से खुश है कि उनको रिजर्वेशन मिला है और ओबीसी भी इसके साथ खुश है कि हमारे रिजर्वेशन को धक्का लगाए बिना ये रिजर्वेशन दिया गया है। तो महाराष्ट्र की वस्तुस्थिति यह है कि महाराष्ट्र में दोनों समुदाय खुश है। अभी जहां तक बात छगन भुजबल साहब की है तो उन्होंने भी आज हाउस में यही कहा कि वो मराठा समुदाय को आरक्षण देने के खिलाफ नहीं थे, उनके कुछ अपने रिजर्वेशंस थे, उनके बारे में उन्होंने बात कही। उन्होंने भी मराठा समुदाय को आज जिस प्रक्रिया से रिजर्वेशन दिया है उसका स्वागत किया है। बाद में उन्होंने कुछ मांगे की है, उसका विचार सरकार करेगी और ऑनरेबल स्पीकर ने भी वैसे रिमार्क्स, वैसे डिसीजन, वैसे ऑर्डर्स दे दिए, तो वो विषय खत्म हो गया। जहां तक जरांगे पाटिल जी की कुछ बातें हैं, उन्होंने ये आने के बाद कुछ कहा। मेरा ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री साहब ने भी उनको मतलब सभागृह में जो भाषण किया है उनमें बहुत सारे इश्यूज को उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने भी उनको कहा कि अभी इस इश्यू को ड्रैग करने में कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। और जहां तक मराठा समुदाय का युवा है, तरुण है, वो ये जानता है कि अब उसको रिजर्वेशन मिला है और जब देवेंद्र जी ने दिए हुआ रिजर्वेशन था वो अपील हुआ था हाईकोर्ट में और उसके बेनिफिट्स यहाँ पे मराठा समुदाय के लोगों को मिले थे। तो उनका ट्रस्ट है इस सरकार के ऊपर, वो जानती है अगर इन्होंने रिजर्वेशन दिया है तो वो पूरी प्रोसीजर फॉलो करके दिया है। तो फर्स्ट थिंग, मराठा समुदाय खुश है। जरांगे पाटिल साहब जो कुछ बातें कह रहे हैं उसके ऊपर विचार किया जाएगा। उनकी जो एक मांग है कि जिनको पुराने कुनबी रिकॉर्ड्स मिले हैं उसके रिजर्वेशन मिलने चाहिए, तो जिनके रिकॉर्ड्स मिले हैं उनको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल रहा है। उनकी एक और मांग थी कि उनके जो महाराष्ट्र में जिसको सगे सोयरे कहते हैं और हिंदी में मुझे नहीं लगता उसको मतलब लूजली कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन डिस्टेंस रिलेटिव, इवन डिस्टेंट रिलेटिव, उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए, ये उनकी मांग है। तो उसके ऊपर भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू किया है, लेकिन उसकी एक प्रोसीजर है जिसका एकनाथ शिंदे जी ने आज हाउस में जिक्र किया। वो जो नोटिफिकेशन इशू किया था उसके ऊपर कुछ हरकतें आई है, आपको उसको पब्लिक हियरिंग के लिए मौका देना पड़ता है। उसके ऊपर 6 लाख हरकतें आई है तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। वो भी बात मुख्यमंत्री महोदय ने की है। तो मुझे लगता है हर किसी को मतलब जो हर किसी के कंसर्न थे उसको एड्रेस किया गया है। मराठा समुदाय को जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रिजर्वेशन चाहिए था वो दिया है और ओबीसी समुदाय का भी ये जो फियर था कि हमारे कोटा में से मराठा समुदाय को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, अलग रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, वो भी पूरा किया गया है। गावड़े साहब, आगे जाके भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी जी अमेठी पहुंचे, राहुल गांधी जी अमेठी पहुंचे और वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी एब्सोल्युटली जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जैसे पॉसिबल है कि बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक्स उत्तर प्रदेश में सब जगह एब्सोल्युटली साफ दिखाई दे रहा है। स्मृति ईरानी जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पहुंचकर यह भाषण दिया, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, पेपर लीक सब जगह। बोलते बोलते उन्होंने कहा कि राम मंदिर का इशू उठा लिया। वहां पर ना आदिवासी दिखे, ना SC ST दिखे, ना गरीब तबके ट्राइबल्स दिखे, कोई नहीं दिखे, ना ओबीसी दिखे। वहां पर बच्चन, ऐश्वर्या राय को बार बार, प्रियंका, तो ये किस प्रकार से, यानी आई डोंट थिंक, फिर बाद में मालूम पड़ा कि ऐश्वर्या राय थी नहीं, बट राहुल गांधी जी ने एक पूरे सिस्टम, पूरे देश में एक वातावरण क्रिएट किया अमेठी जाने के बाद। अमेठी में उन्होंने एक पूरे आज यानी पूरे न्यूज चैनल वहां पर यही बात कर रहे हैं, अमेठी। हाउ डू यू सी दैट गावड़े साहब? पहले तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने कहा कि ये स्मृति ईरानी की कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब ये वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे मतलब इनके दादा परदादा से लड़के आ रहे थे। सर चाचा, दादा परदादा नहीं सर, सिर्फ चाचा। हाँ, दादी उनकी लड़ा करती थी, उनकी एक, हाँ,
ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो वहां से हार गए, भाग गए वहां से। ये आपने अच्छी बात कही कि स्मृति ईरानी की कॉन्स्टिट्यूंसी, और मैं आपको आगे की बात बताना चाहता हूँ कि भविष्य में भी ये स्मृति ईरानी की कॉन्स्टिट्यूंसी करके जानी जाएगी, क्योंकि अमेठी में जिस प्रकार का विकास स्मृति ईरानी वहां की एमपी बनने के बाद किया है, वो विकास पिछले 60 सालों में गांधी फैमिली ने किया नहीं, तो वो अमेठी की जनता जानती है। और दूसरी बात, जो राम मंदिर के बारे में उन्होंने बात कही कि ओबीसी नहीं था, शायद राहुल गांधी जानते नहीं कि जिन्होंने इस मंदिर का लोकार्पण किया वो देश के पंतप्रधान स्वयं ही ओबीसी है। तो एक ओबीसी ने उस मंदिर का, मैं मतलब हम अनफॉर्चुनेटली ये मुझे बोलना पड़ रहा है, हम उसको मतलब राम मंदिर को किसी कास्ट से जोड़ते नहीं है, लेकिन जस्ट उन्होंने कुछ कहा है रिमार्क्स, तो मैं फैक्चुअल पोजीशन आपको बताना चाहता हूँ कि देश के पंतप्रधान जो खुद ओबीसी है, उन्होंने ही इसका लोकार्पण किया है। शायद ये बात राहुल जी भूल गए। तो और दूसरी बात, उन्होंने कुछ सेलिब्रिटीज की बात कही। देखो, जो कार्यक्रम हुआ है उसमें हर तबके के इंसान को सम्मिलित किया गया था, हर तरह के लोगों को बुलाया गया था, उसमें देशों के उद्यमियों को बुलाया गया था, कुछ अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको बुलाया गया था। वहां पे जो सभी अखाड़े हैं हिंदू धर्म के, उनके सभी प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। सभी कास्ट के जो कुछ अखाड़े होते हैं या फिर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट होता है, उनके प्रमुखों को बुलाया गया था। तो मैं मतलब ये आंकड़ेवारी किसी को बताना नहीं चाहता, और किसी ने वो मांगी भी नहीं है कि वहां पे कितने लोग SC/ST की समुदाय से थे या फिर कितने ओबीसी से थे और कितने कौन थे, लेकिन वहां पर समाज के हर तबके के लोग थे, वहां पे भारत के हर तबके के हर क्षेत्र से लोग थे। यही नहीं, जो राम मंदिर बना है, जो पूरी मूवमेंट चली है 500 साल की, उसमें भी समाज के हर तबके के लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। जो मंदिर बना है, स्ट्रक्चर बना है, उसमें भी भारत के हर हिस्से को रिप्रेजेंटेशन मिला है अलग अलग तरीके से। मतलब अगर वहां की लकड़ी कहीं भारत की किसी एक राज्य से लाई गई है, तो पत्थर किसी राज्य से लाया गया है, तो एक तरीके से पूरे भारत का कंट्रीब्यूशन इस मंदिर में रहा है। पूरे भारत के जो विभिन्न वर्गों के लोग हैं, लेकिन गावड़े साहब रहा है। गावड़े साहब, राम मंदिर जो है, राम मंदिर ने भारत के हिंदुओं को एक किया है। आप ये हिस्ट्री जानते हैं, राम मंदिर ने हिंदुओं को एक किया है। ये जो मूवमेंट है राम मंदिर की, उसने हिंदुओं को एक किया है। और राहुल गांधी का दुख यह है कि राम के नाम पे हिंदू एक होता है, वो ये चाहते हैं कि राम के नाम पे हिंदू एक ना हो। ये उनकी मानसिकता है, उसकी वजह से वो ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन गावड़े साहब, आई वांट टू आस्क यू दिस, and this is, I want your personal opinion, not the party opinion, all right? Why is Mr. Rahul Gandhi talking only of Aishwarya Rai? Aishwarya Rai तो वहाँ थी नहीं, तो ऐश्वर्या राय जी के साथ उनका क्या है? एक बार नहीं, उन्होंने 6 बार बोला ऐश्वर्या राय का नाम क्या है मतलब व्हाट हैपेंड? क्योंकि उनको हर जगह ऐश्वर्या राय दिखती हैं क्या? मतलब जहां देखो आप ही आप दिखती हैं, मतलब क्या है वो? गावड़े साहब, शायद जैसा आपने कहा, जो आपने शब्द इस्तेमाल किए, मैं नहीं कर सकता, लेकिन शायद वैसा हो सकता है। उनको हर जगह कुछ दिख सकता है और वो परफेक्टली वैलिड भी है, उसमें कोई मतलब ये नहीं है। तो इसकी वजह से उन्होंने वो कहा। लेकिन उस समारोह में जो गरीब लोग थे, जो सामान्य लोग थे, उनके बारे में उनको कुछ पता नहीं है राहुल गांधी जी को। और शबरी और छोड़िए, मां शबरी के जो डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, वो पूरा कबीला भी वहां पर था। आदिवासी जो हैं, मां शबरी के जो मतलब डायरेक्ट अनुयायी हैं, जो उनके पुश्तैनी हैं, उन्हीं परिवार से आते हैं, वो लोग भी वहां पर थे। महाराष्ट्र में, हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में संत परंपरा जो है, तो सभी संत परंपराओं के जो संत थे उनको बुलाया था, सभी अनुयायियों को बुलाया गया था। महाराष्ट्र से वहां पे कीर्तन हो रहा है। राम मंदिर में पहला कीर्तन जो होगा वो महाराष्ट्र के लोग करने वाले हैं जी। तो ये जो एक करने की जो चीजें हैं वो राहुल गांधी को दिखती नहीं है। राहुल गांधी इनहेरेंटली एक डिविजिव व्यक्ति है, वो हर जगह कुछ डिवीजन करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो उसमें कभी यशस्वी नहीं हो सकते। उनका जो एलिगेशंस है कि बीजेपी झूठ की थी, 10 साल किसानों को ठगा राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे, 2 डबल इनकम ऑफ फार्मर्स आपने प्रॉमिस किए थे, आपने एमएसपी को भी तरसा डाला बीजेपी ने। महंगाई इस कदर बढ़ गया है कि किसानों के पूरे जो कंडीशंस है, कर्ज 60% उनको एक्सपेंसिव पड़ रहा है। 30 फार्मर्स डाइंग एवरी डे, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे। और आगे जाके जो किसानों को न्याय आप कैसे देंगे? बिकॉज आप किसानों के राह पर किले बिछा रहे हो, किले, पत्थर, वायर सब बिछा रहे हो, तो आपसे किसानों से क्या उम्मीद कर सकते? किसान आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं?
गावड़े साहब, किले बिछाते हो तो कैसे आप किसानों को न्याय देंगे? नहीं, पहली बात जो किसानों की आय के बारे में उन्होंने कहा कि हमने ये बात कही थी कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। मैं दावे के साथ आपके चैनल के ऊपर कहना चाहता हूं कि किसानों की आय में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वो रिकॉर्ड्स है, उसका डाटा सभी को अवेलेबल है जो वो पढ़ना चाहता है। दूसरी बात एमएसपी की आपने की। एमएसपी पे सबसे ज्यादा धान अगर किसी ने खरीदा होगा तो वो इस सरकार ने खरीदा है। अगर आप 10 साल का हमारा और 10 साल का उनका कंपैरिजन करेंगे तो हमने डबल ट्रिपल धान एमएसपी पे खरीदा है। दूसरी बात ये कि हमने एमएसपी भी बढ़ाई है। लगभग हर धान के ऊपर हमने इसके ऊपर हमने एमएसपी बढ़ाई है। तो वो भी बात राहुल गांधी की जी झूठ है और ये किसान जानते हैं। और तीसरी बात जो आपने कही कि किसानों के रास्ते में कील बिछाए गए, वो कील जो है वो किसानों के रास्ते में नहीं बिछाए गए हैं। और वो जो चित्र अभी घूम रहे थे वो भी चित्र अभी के नहीं है। वो पिछली बार जब आंदोलन हिंसक हुआ था उसमें कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट घूमे थे, घुसे थे। उस वक्त क्या क्या चीजें हुई थी आप जानते हैं। वहां पे किसी की हत्या हुई थी, किसी का बलात्कार हुआ था, लाल किले के ऊपर वायलेंस हुआ था। वो उस वक्त के कुछ चित्र है। और वो जो कील बिछाए गए थे वो किसानों के लिए नहीं, वो एक्सट्रीमिस्ट के लिए, खलिस्तानियों के लिए थे। और हाँ, खलिस्तानियों को हम वेलकम नहीं करेंगे। खलिस्तानियों के रास्ते में हम कील ही बिछाएंगे। किसानों का स्वागत है, किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। और किसान भी जानते हैं कि कौन आंदोलन सिर्फ इलेक्शन इसके लिए कुछ करने के लिए कौन आंदोलन कर रहा है। किसान ये जानता है कि सबसे ज्यादा एमएसपी के ऊपर अगर धान किसी ने खरीदा होगा तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खरीदा है। तो ये सब जो डाटा है, ये सब सच्चाई है जमीन की, वो किसान जानता है। आगे जाके गावड़े साहब डायरेक्ट बेनिफिट जो किसानों को मिला है वो जनता जानती है। खड़गे साहब आगे जाके कह रहा है कि किसानों को तो आपने बर्बाद कर ही दिया, अग्निवीर जवानों को भी बर्बाद किया आपने। अग्निवीर के जो पैसे हैं आपने, आज राहुल गांधी जी ने कहा अग्निवीर के जो फंडिंग है, पैसे हैं, वो अडानी के लिए डाइवर्ट किया है राहुल गांधी जी। 30% गवर्नमेंट वैकेंसीज और गवर्नमेंट जॉब्स खाली है, आपने रेगुलर भर्ती बंद कर दिया है बीजेपी ने। तो ये एक तो यह है कि आप किसानों को भी कर दिया और दूसरे अग्निवीर को भी कर दिया और फंड्स जो है वो डाइवर्ट कर दिया अडानी के लिए। ये राहुल गांधी जी का चार्ज है ना। हाउ डू यू सी? बट ये एक थोड़ा मसला है। 30,000 पोस्ट आर लाइंग वेकेंट, सॉरी 30 लाख। तो अब अभी मतलब कोई भी मुझे लगता है इस देश का कोई भी जो आम युवा है उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी जी के ऐसे जो रिमार्क्स है वो देखकर ये है कि वो राहुल गांधी से उनकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा है। सभी जानते हैं कि मतलब अभी ऐसे एलिगेशंस करना कि अडानी को मनी ट्रांसफर किया है, इसका कुछ मतलब रिकॉर्ड है, कुछ है। सिर्फ राहुल गांधी हर रैली में कुछ ना कुछ बातें करना चाहते इसकी वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। पिछली एक सभा में उन्होंने कहा कि जीएसटी का पैसा अडानी को दिया जा रहा है। अभी मतलब ऐसी बेतुकी बातें अगर कोई कहेगा तो उसका मतलब जवाब भी क्या दे सकते हैं। मतलब ये कोई मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई साउंड माइंड में जो बंदा नहीं होगा, पागल पूरी तरीके से हुआ होगा, जो हताश हुआ होगा, जिसको सामने हार दिख रही है, वही बंदा ऐसी बात कर सकता है। कल उन्होंने एक अपनी रैली में किसी एक लड़के को वो गाड़ी के ऊपर चढ़ाया, उसको पूछा कि तेरी टी शर्ट कितने की है और इससे जो जीएसटी मिली है वो अडानी को गई है। मतलब आप दोनों बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, इससे कौन सा तर्क बनता है? आगे जाके वो कहते हैं कि राहुल गांधी गवर्नमेंट उसमें ये महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या राहुल गांधी ये मानते हैं इस देश की जनता को मैं कुछ समझ नहीं है। वो ऐसी कुछ भी बात कहेगी कि अग्निवीर का जो पैसा है, जवानों का जो पैसा है वो अडानी को दिया गया है, जीएसटी का पैसा है वो अडानी को दिया है। अरे आप क्या देश के लोगों को पागल समझते हैं क्या? बट ये वैकेंसी जो गवर्नमेंट वैकेंसी है उसके लिए कोई आंसर है कि राहुल गांधी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। अगर आपको कुछ एलिगेशंस भी लगाने होंगे ना तो कुछ क्रेडिबल एलिगेशंस लगाइए। आगे जाके कहते हैं कि गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर में बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो होते हैं कि आदिवासी, एससी एसटी, ओबीसी, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर में ज्यादातर होते हैं ना। आप और लोगों से जिस प्रकार से पूछ रहे कि मैं पूछना चाहता हूं, हेल्थ सेक्टर है, जुडिशरी में है, मीडिया में है, क्या ओबीसी, एससी एसटी एंड आदिवासी क्या आप देखते हैं? तो ये एक रेगुलर है। फिर आगे जाके मतलब जाति जनगणना ये सिर्फ राहुल गांधी कर सकता है और 2024 में होगा, और जो 50% लिमिट है बढ़ेगा एंड राहुल गांधी विल डू इट इन 2024। तो गावड़े साहब बोल तो रहे हैं वो
जो सॉल्यूशंस हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो खुलेआम बोल रहे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। नहीं, ऐसा है, राहुल गांधी ने ये सभी बातें जो अभी 3 राज्यों के इलेक्शन हुए उसमें भी कही थी, लेकिन जनता ने उसके बारे में क्या डिसीजन दिया वो आप सबको पता है। ओबीसी के विषय में कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जनता जानती है। 10 साल तक मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट था, राहुल गांधी जी की दादी इंदिरा गांधी उस वक्त पंतप्रधान थी और 10 साल तक ये मंडल कमीशन का रिपोर्ट जो है उन्होंने दबा के रखा था, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। तो कांग्रेस का ओबीसी के बारे में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जनता जानती है और ओबीसी इनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता, इनके ऊपर कुछ भरोसा ही नहीं है ओबीसी का। तो राहुल गांधी कल को कुछ भी कहेंगे, मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, जनता उसके ऊपर भरोसा नहीं करती। जनता भरोसा उसके ऊपर करती है जिसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और दूसरी बात, उन्होंने जो आपने अभी कही कि मतलब सेक्रेटरी वगैरह ओबीसी नहीं है, तो मुझे लगता है 2-3 दिन पहले अमित शाह साहब ने उसके ऊपर बहुत सटीक तरीके से जवाब दिया है कि ये जो सेक्रेटरीज बनते हैं गवर्नमेंट में, वो एक दिन में नहीं बनते, वो सालों में बनते हैं। तो आपके समय में भी कुछ लोग आए नहीं, उसकी वजह से आज टॉप मोस्ट पोजीशन पे आपको वो नहीं दिखेगी सेक्रेटरीज लेवल के ऊपर जाना। तो ये कांग्रेस का फेल्यूर रहा है। तो ओबीसी समुदाय ये अच्छे तरीके से जानता है राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। और सर ये चलते चलते ये भी बता दें, गावड़े साहब चलते चलते ये भी बता दें, देखिए साहब ऐसा है, आज की तारीख में मोदी जी इज इनॉग्रेटिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री, हर जगह पर, तकरीबन हर जगह पर। और तो और छोड़िए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये कहा है कि नाउ उत्तर प्रदेश विल बी द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन वेरी वेरी शॉर्टली, ऐसा कहा गया है। अब होता है कि नहीं वो तो मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से वो करते हैं। सर 2 चीज़ें हैं, इनफैक्ट 3, जो ऑपोजिशन इज सेलिब्रेटिंग। नंबर 1, आज का जो चंडीगढ़ का मेयर का पोल है वो आया। नंबर 2, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो आया। और नंबर 3, जो बिल्किस बानो केस में जो जिन लोगों को छोड़ा गया था उनको कहा गया कि आप वापस यहाँ पर आ जाइए, जेल आइए, और उनको छोड़ना गलत था। इन 3 निर्णय पे विपक्ष जो है वो बीजेपी की हार मान रहा है। आप उसको कैसे देखते हैं प्रदीप गावड़े साहब? नहीं, पहले चंडीगढ़ का जो मसला है उसके बारे में मैंने शुरुआत में वो तो आपने स्पष्ट बता दिया है, उसके बारे में मैंने स्पष्ट बोल दिया है जी। अब इलेक्ट्रल दूसरी बॉन्ड जो बात है, जो पर्सनली, दूसरी जो इलेक्टोरल्स की बॉन्ड है वो पर्सनली मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग है। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये जानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक दिन में नहीं आती। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो प्रोविजन था वो अ स्टेप टुवर्ड ट्रांसपेरेंसी था। द होल रीजन बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स वो ये था, मतलब ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का मतलब पूरा प्रयोजन ही ये था कि जो ब्लैक मनी है वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड नहीं किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग ब्लैक मनी से ना हो, जो मनी आए पॉलिटिकल पार्टीज को वो व्हाइट मनी हो। ये रीजन था ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए थे। और उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत जो कुछ डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा था वो प्योरली व्हाइट मनी था। तो वो एक स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी था। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आगे के कुछ निष्कर्ष बता दिए हैं, लेकिन आपने जो बेसिक प्रॉब्लम था, आज सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन की वजह से हम बैक टू जीरो आ गए। अब फिर मतलब जैसे जिनके पास ब्लैक मनी है वो पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने हित के लिए फंड कर सकते हैं। आज फिर हम ट्रांसपेरेंसी के इसके ऊपर एक स्टेप पीछे आए। तो यू जस्टिफाइंग प्राइम मिनिस्टर मोदी का आलोचना जो किया था, उन्होंने कृष्णा और सुदामा का स्टोरी बता के उन्होंने आलोचना किया कि आज जो सुदामा अगर चावल भी, राइस भी देते हैं कृष्ण को, कोई पीआईएल फाइल करता है तो सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर लेता है कि ये ब्राइबरी अमाउंट है या अनजस्टिफाइड फंड्स है। तो ये पहली बार मोदी साहब ने जुडिशरी पे उंगली उठाया। गावड़े साहब? नहीं, डेफिनेटली सर, मतलब जुडिशरी की अपनी कुछ बाउंड्रीज है, उसका जुडिशरी ने ख्याल रखना चाहिए। मैं ये विद रिस्पेक्ट कह रहा हूं, वो एग्जीक्यूटिव का जो डोमेन है उसमें जुडिशरी ने आके फंक्शन नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। पॉलिसी मेकिंग जो काम है वो गवर्नमेंट का है और वो गवर्नमेंट ने करना चाहिए। जो बनाई गई पॉलिसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर है कि नहीं, उसका डिसीजन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली सम मैटर्स में ये हो रहा है कि
जुडिशरी का एक्सक्रेशन एग्जीक्यूटिव के डोमेन के ऊपर हो रहा है, यह पहली चीज है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में और सेशंस कोर्ट में इतने ज्यादा मामले लंबित है, उनको सॉल्व करने के लिए मतलब जो पहले क्रिमिनल जस्टिस है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, विच इज द बेसिक फंक्शन ऑफ जुडिशरी। वो ना करते हुए आज हाई कोर्ट्स का और सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा टाइम फ्रीविलस जो पीआईएल थे उनको एंटरटेन करने में जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कितना टाइम मतलब पीआईएल में जा रहा है, और वहां पे कितनी सारी क्रिमिनल अपील होगी जो डेथ पेनल्टी के ऊपर होगा या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट के ऊपर होगा। वो व्यक्ति लंबित है कि यार मेरी सुनवाई कब हो, वो नहीं हो रहा है। जो कुछ मतलब सो कॉल्ड प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनके जो पिटिशंस होते हैं वो एक दिन में वहां पे बोर्ड पे आते हैं और हियर किए जाते हैं मेंशनिंग के बाद। कुछ पर्टिकुलर लॉयर्स अगर खड़े हो गए तो मेंशनिंग करने के बाद आपको एकदम अर्जेंट हियरिंग मिल जाती है, लेकिन गरीब की हियरिंग नहीं हो रही है। गरीब की हियरिंग नहीं हो रही है जी। तो ये बातें मतलब मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक वकील हूँ, इसी मतलब फ्रेटर्निटी से हूँ, मैं जानता हूँ वहां पे क्या माहौल है। We can continue with this discussion because Mr. Kapil Sibal and Mr. Abhishek Manu Singhvi and Prashant Bhushan accuse the other side of exactly the same thing. तो आज पहली बार मोदी जी खुलेआम आ गए जुडिशरी। But I'll tell you what, we are in for very interesting times. This is going to be very interesting the way this entire thing plays out. In any event, thank you very much, Pradeep Gowde sahab. I love your research and I love the way you answer every question. And what is more, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, आप आंकड़ों के माहिर हैं और आपकी रिसर्च जबरदस्त है साहब, मानना पड़ेगा। Thank you very much for joining us. Always a pleasure talking to you. Pradeep Gowde साहब, नमस्कार और जय सिया राम। Thank you. Thank you very much, sir. It is always pleasure talking with you, sir. Really lovely talking to you. Thank you so much. Yes. Wonderful. Yeah. Thank you. Well, there was a very candid Mr. Pradeep Gowde, and I never expected that for him to come along and talk about the Supreme Court in this manner. Modi ji has opened the gates. Yes. So the entire BJP machinery is on that. Yes. The Supreme Court interference in administration is not democracy, is not good for democracy, and so on and so forth. Now the Congress will say study independent. The independence of judiciary has been restored by this Chief Justice. When the Supreme Court was doing that to the Manmohan Singh government, at that time the BJP was applauding.